नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, GK केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, सारदापल्ली, स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष आज आसनसोल पहुंचे। यहां पर उन्होंने सदस्यता अभियान का नेतृत्व दिया। इस मौके पर यहां जिला भाजपा अध्यक्ष बप्पा चटर्जी, वरिष्ठ भाजपा नेता शंकर चौधरी सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ पर दिलीप घोष ने सदस्यता अभियान का नेतृत्व किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि आज बंगाल में अराजकता पूरी तरह से फैल गई है। यहाँ पर गुंडे प्रशासन चला रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर आए दिन खून खराबा हो रहा है, लेकिन कोई भी अपराधी कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहा। उन्होंने बैरकपुर का हवाला देते हुए कहा कि जब भी बैरकपुर में कोई घटना घटती है, टीएमसी की तरफ से अर्जुन सिंह को दोषी करार दिया जाता है। अगर अर्जुन सिंह ही बैरकपुर में घटने वाली हर घटना के लिए दोषी हैं, तो जब वो टीएमसी में थे तब गोलीबारी और बमबाजी की घटनाएं क्यों हो रही थीं? राज्य में टीएमसी की सरकार चल रही है, लेकिन टीएमसी नेता ही सुरक्षित नहीं हैं। उनकी दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। इसी से साबित होता है कि आज पश्चिम बंगाल में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। কোন যোজনাতে দুর্নীতি নেই? আবাস আছে, শৌচালয় আছে, নতুন শুরু হয়েছে ট্যাব, সব সরকারি সমস্ত যোজনা, চাই কেন্দ্র হোক চাই রাজ্য হোক, কার্ড মানি ছাড়া লোক পাবে না। নাম পাল্টে যাচ্ছে আবাস যোজনার, ট্যাবের জন্য টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে, এখন সাইবার ক্রাইমের দেখানো হচ্ছে, আমফানের টাকাও চলে গেছে। এই যে লুট, সরকারি টাকা লুটের কম্পিটিশন চলছে। সরকারের লোকেরা, পার্টির লোকেরা লুট করে খাচ্ছে, সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী হাজার হাজার কোটি টাকা পাঠাচ্ছেন, গায়েব হয়ে যাচ্ছে, আর সরকারের ঋণ বেড়েই যাচ্ছে কোথায় টাকা? যেখানে সেখানে টোল প্লাজা বসিয়ে টোল ট্যাক্স জোর করে আদায় করা হচ্ছে, লুটের রাজত্ব চলছে। এই সরকারের যে কটা দিন আছে লুট চলবে। দেখা যাচ্ছে যে কর্পোরেশনের মধ্যে শুধু যে টাকা নয় ছয় হচ্ছে, এটা নিয়ে কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি কোথায় নেই? স্কুলে চক ডাস্টার কেনার পয়সা নেই, যাচ্ছে কোথায়? কর্পোরেশনে জল ক্রাইসিস শুরু হয়ে গেছে, কারণ খুব তাড়াতাড়ি ট্যাঙ্কার নামিয়ে টাকা লুট করা হবে। এসব ক্রিয়েটেড, এটাই রাজনীতি, আর এটা দেখতে হবে সবাই। চলুন দেখুন, আজ টিএমসির নেতাদের যদি খুন করা হয়, উনি তখন বিরোধী পক্ষে আছেন, আমাদের দিকে আছেন, তার জীবন সংকট হবে, আমাদের বিরোধী নেতা বা আমাদের অন্যান্য নেতারা টার্গেট হবে, এটা স্বাভাবিক। এই সরকার তার পার্টির নেতাদেরকে সুরক্ষা দিতে পারে না। আর অর্জুন সিং এমন একটা জায়গায় আছেন যেখানে রোজ বোম বন্দুক চলে, আর তাকেই দায়ী করা হয়। তিনি বিজেপি থাকলেও তিনি দোষী, তিনি টিএমসি থাকলেও। তো কেন বন্ধ হয় না? উনি তো টিএমসিতে চলে গেছেন, যদি উনি করেন তখন তো চলতো। তো সেই জন্য এই যে সরকার, নিকম্মা সরকার আছে, যার হাতে আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। এখানে মমতা ব্যানার্জি কী সামলাবেন? ওনার স্বপ্ন সবসময় দিল্লিতে প্রাইম মিনিস্টার হবেন, সেটা হচ্ছে না। এখন পার্টি সামলাবেন না, সরকার সামলাবেন না, বিরোধী ঐক্য ইন্ডি জোট সামলাবেন, উনি ঠিক করতে পারছেন না। তো এই সুযোগে দুষ্টতাকারীরা যারা ভোটে জেতায় তারা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। ইউপি, বিহারের যত দুষ্টতাকারী পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছে। ওখানে বোম বন্দুকের কারখানা হতো, এখন পশ্চিমবাংলায় জেলায় জেলায় হয়ে গেছে, আর সেটা প্রয়োগ হচ্ছে। কলকাতায় পিস্তল পাওয়া যাচ্ছে, বোম পাওয়া যাচ্ছে, বাকি সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে?
আসানসোল বা আমাদের খড়গপুরের মতো জায়গা তো চিরদিন উপদ্রুত। আজকে সারা পশ্চিমবাংলাটা এরকম হয়ে গেছে। उद्योगपति पंकज कुमार प्रभाकर और उनकी पत्नी प्रिया देवी न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस से देवघर में परिवार में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जब उनकी ट्रेन जसीडीह रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो प्रिया देवी ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर प्लेटफॉर्म पर एक भिखारी को दान किया, लेकिन कुछ देर बाद प्रिया देवी ने देखा कि उनका पर्स गायब हो गया है। तुरंत इस घटना की जानकारी जसीडीह जीआरपी, पटना जीआरपी और आसनसोल जीआरपी को दिया गया। आसनसोल जीआरपी के इंस्पेक्टर इंचार्ज पी चटर्जी ने अपनी टीम को पूर्वा एक्सप्रेस में तलाशी का आदेश दिया। सब इंस्पेक्टर राणा आज़ाद सिंह ने अपनी टीम के साथ पूर्वा एक्सप्रेस के विभिन्न वातानुकूलित कोच में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्हें एक बैग बरामद हुआ। उस बैग में नकद रुपए और सोने के गहने मिले। बताया जा रहा है कि नकद और गहने मिलाकर उस बैग में तकरीबन 1 लाख रुपए की संपत्ति थी। सब इंस्पेक्टर राणा आज़ाद ने तुरंत घटना की जानकारी जसीडीह जीआरपी को दिया। इसके बाद उद्योगपति पंकज कुमार प्रभाकर से संपर्क किया गया और उन्हें उनके चोरी हुए बैग की बरामदगी के बारे में जानकारी दी गई। आसनसोल जीआरपी के अधिकारियों ने उन्हें बुलाकर उनका चोरी हुआ बैग सौंप दिया। पंकज कुमार प्रभाकर और उनकी पत्नी आसनसोल जीआरपी के इस त्वरित कार्रवाई से बेहद खुश हैं। पटना से पूर्वा से मैं दानापुर जसीडीह के लिए मैं आ रहा था। पूर्वा से आ रहे थे? पूर्वा से आ रहा कहाँ से ट्रेन पकड़े थे? पटना से। अच्छा, कौन कोच में थे? A1 A1 में। कौन कौन था आपके साथ? मैं और मेरी वाइफ थी। अच्छा, उनका हैंड बैग आज ही? आज हाँ। ट्रेन लेट थी 2-3 घंटा, हम्म, तो रह गया या कोई ले लिया मेरे को पता नहीं है। हम लोग ट्रेन उतर गए। कहाँ उतरे? जसीडीह उतर गए, ठीक है। उतर गए। हाँ, उसके बाद अचानक ये चिल्लाने लगी मेरा पर्स। ठीक है। तो हम लोग पूरा सर्च किए पहले, कहाँ है, कहाँ छूटा होगा। तो फिर याद आया कि एक भिखारी को 10 रुपया दिया था उसमें से निकाल के। अच्छा, ऐसे टांगी हुई थी वैसे ही वही निकाल के दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने उसको सर्च किया कि वो कहाँ गई होगी ट्रेन। तो पता चला कि वो ट्रेन आसनसोल वाले स्टेशन आसनसोल आ रही है। आसनसोल। तो उसके बाद आसनसोल पुलिस गई उसको रिकवर कर। मतलब आप क्या किए? आपका बैग जब जसीडीह में मिसिंग हो गया तो आप तो कुछ ना कुछ तो किए होंगे। पटना मैंने दानापुर में इसको कंप्लेन किया, दानापुर को हमने फ़ोन किया, अखिलेश कुमार को। हाँ। उसके बाद मैंने 3-4 जगह और कॉल लगाया। मेरे बेटे ने भी प्रयास किया। अच्छा, कोई बर्दवान से भी लोगों ने लगा हुआ था। अच्छा, लेकिन मेरे को कोई प्रॉपर संतुष्टि नहीं मिली किसी के जवाब का। मेरे को एक और नंबर मिला था यहाँ आसनसोल का। हाँ। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो बहुत लेट हो गया है, अब नहीं हो सकता है। अच्छा। वो सब उनका नाम भी है मेरे पास, रजक साहब कहे कि ये तो लेट हो गया, अब तो नहीं जा तो पाए। आसनसोल जीआरपी जो आपको रिकवर किया, हाँ राइट, वो कैसे आप आसनसोल जीआरपी को संपर्क किए थे क्या? जी संपर्क किए थे? वो हमने अजय जी को फ़ोन किया, सभी मैडम को बोला। तो आसनसोल जीआरपी आपको जो बैग जो आपको कलेक्ट करके दिया, उसमें क्या था बैग में? उसमें मेरे कुछ ज्वेलरीज थे वाइफ के और कुछ रुपया था, करीब 11,000 समथिंग। 11,000 कैश था। हाँ। और जेवर कितना रुपये का था? और जेवर 3-4 गोल्ड का रिंग है और बाकी का कुछ डुप्लीकेट। लगभग कितना का होना चाहिए? लगभग उसका मोर देन 1 लाख। 1 लाख रुपये। मतलब 1 लाख रुपये का आपका सामान जो चोरी हुआ था आसनसोल जीआरपी ने रिकवर किया, यही बात है ना? तब आसनसोल जीआरपी जो इतना बेहतर काम किया है पैसेंजर को लेकर, तो उसको लेकर आप क्या संदेश उनको देंगे? हैट्स ऑफ। हम लोग रोटरी क्लब के भी मेंबर हैं और कंटिन्यू मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं बिहार झारखंड का रोटरी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लब डेवलपमेंट ये इंचार्ज, और इस तरह का काम जो जीआरपी पुलिस ने किया है, और मेरे को जैसा जानकारी मिला। कौन जीआरपी पुलिस ने किया? मिस्टर सुजान आसनसोल जीआरपी।
तो उसके बाद उन्होंने अपना फ़ोटोज़ भेजा, वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उसका रिकॉर्डिंग करके पूरा इतना रुपया हमने पा लिया, ये ऐसी ज्वेलरी हमने पा लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे हम लोगों का और फेथ बढ़ता है और हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ती है कि हम नहीं भी हैं या मेरे से कोई गलती हो रही है तो मैं पुलिस मेरे साथ है। आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार प्रभाकर है। आप कहाँ रहते हैं? मैं आरा में रहता हूँ, चित्रकोली रोड, सूरज स्टील फैक्ट्री, चित्रकोली रोड, आरा में। तो जैसे देवघर किस लिए आ रहे थे? देवघर शादी है तो असिस्टेंट आरा से देवघर आ रहे थे शादी समारोह में? आरा से मैं पटना आया था, पटना से वाइफ को लेके मैं पूर्वा से आ रहा था शादी के लिए और वो पूरी ज्वेलरी जो थी वो ठीक है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आज आसनसोल के इस्माइल इलाके में गुरु नानक स्कूल में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ सिख समाज के नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों के लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पर सिख संगत की तरफ से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे, इन्होंने लंगर चखा। इस मौके पर आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भरारा ने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर हर साल की तरह इस साल भी इस्माइल के गुरु नानक स्कूल में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है, जिसमें सिर्फ सिख समाज के नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग शामिल हुए हैं। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है और हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आकर लंगर चख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की वाणी सिर्फ सिख समाज के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रासंगिक है। देखिए, आप लोगों को जैसे पता है भैया जी, गुरु नानक देव जी का जयंती आसनसोल में मनाया जाता है। 555वां जन्म दिहाड़ा, जिसको पंजाबी में जन्म दिवस है। और यहाँ इस्माइल स्कूल में सारी संगत इकट्ठी है, सब धर्म के आदमी हैं। यहाँ से 2 बजे हमारा नगर कीर्तन निकलेगा, जो गुराई रोड होते हुए और फिर हाटन रोड होते हुए, जीटी रोड होते हुए रामबंधु तालाब गुरु नानक नगर में ख़त्म होगा। बहुत अच्छा
माहौल है। संगत बहुत इलाकों से, सब जगह से आई है। पीछे भी देखिएगा लंगर का अरेंजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या चिंता किए हुए हैं? देखिए, हम लोगों को प्रशासन की तरफ से पूरा सपोर्ट है, उनका तरफ से जो सुरक्षा है तो है ही है, लेकिन हम लोगों का कृपा से कभी भी कोई गुरु नानक देव जी का जन्मदिन में कोई सुरक्षा रिलेटेड इशू कभी भी नहीं हुआ और उम्मीद करते हैं आगे भी ना हो। लेकिन प्रशासन कॉर्पोरेशन की तरफ से बहुत हेल्प है। गुरु पूर्णिमा आज खूब सुंदर दिन। आज कार्तिक पूर्णिमा शुरू হয়েছে। आज रास पूर्णिमाও আছে। এত সুন্দর দিনে আমি প্রথমে ঘাগরবুড়ি মন্দিরে পুজো দিয়ে তারপর প্রত্যেকবারের মতো এইবারও এই ইয়েতে উপস্থিত হয়েছি। ব্যবস্থাপনা আগেই আমরা ফলো আপ করেছিলাম কর্পোরেশনের তরফ থেকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে জল দেওয়া সব কিছুই আমরা করেছি। সুন্দর ব্যবস্থা। তো আমরা গুরুজির কাছে প্রণাম করে জানাতে চাই আসানসোলবাসী সকল মানুষ যেন সুস্থ থাকে, সুন্দর থাকে, ভালো থাকে। ধন্যবাদ। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दामोदर नदी में पुण्य स्नान के लिए पहुंचे। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस पुण्य स्नान करने से ईश्वर की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। इसके उपरांत श्रद्धालु बर्नपुर के भूतनाथ मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर साल हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु नदियों में पुण्य स्नान के लिए पहुंचते हैं। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।